video, I have already explained you the two paragraphs. Let's first of all see what I have taught you in the previous video, then I will explain you further. So here in this poem, the poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. He further says that the tiger can take only a few steps because the cage is small and it is not easy to move in it. One cannot hear his footstep because he has very soft feet like velvet, because of which there is no such sound of the tiger's footsteps. The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. He is angry because he is not free. The poet further says that if this tiger was free, he would have hid himself behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it as a food. Basically, the poet wants to say that the actual life of a tiger is to live in jungle where he could catch his prey and eat it, but the tiger in the cage cannot do so. Okay, now we'll start with the third paragraph. Let's read the third paragraph first. He should be snarling around houses. Snarling means warning sounds made by animals. जो घुर्राने की आवाज़ जो होती है वो वार्निंग साउंड्स होते हैं. They are known as snarling. At the jungle's edge, baring his white fangs. Baring means uncovered. His white fangs. Fangs मतलब होता है sharp tooth of animals. His claws. Claws इसके पंजे. Terrorizing the village. So, first of all, the literary device used in this is assonance. Assonance I have told you earlier. जब किसी भी vowel sound which are a e i o u उनमें से किसी sound का अलग अलग जगह पर यूज़ होता है एक ही लाइन में, और उस लाइन में कोई vowel sound प्रोमिनेंटली उभर कर अगर उसका साउंड आता है तो वो एसोनेंस हो जाती है लिटरेरी डिवाइस. तो फॉर एग्जाम्पल लाइन शुड अराउंड हाउसेस, इज दैट सो? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. तो शुड, अराउंड और हाउसेस इन तीनों में ओ का साउंड आ रहा है, तो दिस लाइन हैज़ लिटरेरी डिवाइस नेम्ड एसोनेंस. द अनदर एग्जाम्पल इन दिस पैराग्राफ ओनली इज bearing his white fangs, his claws. So I का साउंड प्रोमिनेंटली आ रहा है सेंटेंस में. ओके, द अदर इज एलिट्रेशन, ऑल्सो नोन एज कॉन्सोनेंस. तो कॉन्सोनेंस क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स का अगर किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड, अब कॉन्सोनेंट साउंड्स होते क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो अल्फ़ाबेट A to Z में 5 तो देयर आर वोवेल्स A E I O U एंड रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट. दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट. तो किसी भी कॉन्सोनेंट का साउंड अगर प्रोमिनेंटली किसी लाइन में आता है तो उसको हम कॉन्सोनेंस या फिर एलिटरेशन बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइन हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. सो एस का जो साउंड है वो प्रोमिनेंटली उभर कर इस लाइन में आ रहा है एंड एस इज़ यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. सो दिस इज़ नोन एज दिस लिटरेरी डिवाइस इज नोन एज कॉन्सोनेंस और एलिटरेशन. ओके, सो दिस पैराग्राफ मीन्स दैट द पोएट in this paragraph says that if the tiger would have been free, he would have snarled around the houses. अगर टाइगर फ्री होता और इस केज में बंधा नहीं होता तो वो इधर उधर घूम रहा होता. अब लोगों को वार्निंग साउंड्स दे देकर, स्नार्लिंग मतलब गिविंग वार्निंग साउंड्स मेड बाय द एनिमल्स. He would have snarled around the houses located on the outskirts of the forest. Outskirts होते हैं edges. जो बाउंड्री होती है, जिस एरिया जो एरिया ख़त्म होता है जहाँ पर, उसको आउटस्कर्ट्स बोलते हैं. द बाउंड्री इज़ नोन एज आउटस्कर्ट्स. तो जो जंगल के बाउंड्री में जहाँ पे हाउसेस बने होंगे वहाँ पर वो
इधर उधर वॉन्डर करेगा और अपने स्नार्लिंग साउंड से वो दूसरों को वॉर्न करेगा. इफ़ ही वुड हैव बीन फ्री, he would terrorize people. Terrorize means make them afraid, make them scared with his sharp tooth and claws. तो वो उनको डराएगा लोगों को, जहाँ पे वो जिन हाउसेस में वो जो लोग रहते हैं उनको he would terrorize them through his with his tooth, sharp tooth and his claws, मतलब पंजे. This would create fear among the people living in the villages. और यही सारी एक्टिविटीज़ जो टाइगर की हैं वो टेरर क्रिएट करेगा, फियर क्रिएट करेगा उन लोगों में जो लोग विलेजेस में रह रहे हैं. ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट इज़ बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड वाटर. तो जो उनका जेल है, जो वहाँ का केज है, उस दैट इज़ नोन एज हेयर कॉन्क्रीट सेल. उसको ही कॉन्क्रीट सेल बोला गया है. His strength behind bars, stalking the length of his cage. Stalking means walking, ignoring visitors. So the literary device used in this paragraph is personification, because tiger is personified. Okay, and the poet refers tiger as he. बेसिकली एनिमल्स के लिए हम इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं rather than he और she, बट यहाँ पे पोएट ने ही करके रेफ़र किया है टाइगर को. तो हेयर ही इज़ द टाइगर इज़ पर्सोनिफाइड. द अदर इज़ एसोनेंस, क्योंकि यूज़ ऑफ वॉवल साउंड्स किसी लाइन में प्रोमिनेंटली आ रहा है, यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 1, ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. तो ई का साउंड आ रहा है प्रोमिनेंटली, तो दैट इज़ एसोनेंस. फिर अनदर है कॉन्सोनेंस. नाउ कॉन्सोनेंस इज सिमिलर टू एलिटरेशन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट का साउंड उभर के आता है प्रोमिनेंटली, विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. सो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर इसी पैराग्राफ में. स्टॉकिंग द लेंथ, सॉरी his strength behind bars. S का साउंड जो है that is coming prominently in this line. The other is alliteration, use of sound B at the start of two words. तो starting के two words में किसी कॉन्सोनेंट का साउंड आना. कॉन्सोनेंट वही हो गए A to Z अल्फ़ाबेट्स में 5 are vowels, rest of all the alphabets are known as consonants. So B का साउंड आ रहा है फर्स्ट 2 letters में. For example, as you can see, the third paragraph, behind bars. Okay, so behind bars यूज़ हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड लाइन में behind bars. तो ये जो 2 वर्ड्स हैं इसमें आपका बी का साउंड बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है. ओके, सो दिस पैराग्राफ मीन्स दैट नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी. पहले तो वो इमेजिनेशन चल रही थी कि अगर वो फ्री होता तो कैसा होता, बट रियलिटी क्या है? He is in the cage. He is inside the cage. This is the reality. He says that the tiger is confined in a strong cell which is made up of strong building material like सीमेंट, ब्रिक, सैंड, वाटर, इन सब से बना हुआ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल्स से बना हुआ एक केज है जिसके अंदर वो कन्फाइंड है. दिस इज़ द रियलिटी. ही फर्दर सेज दैट एज द टाइगर इज़ बिहाइंड बार्स, तो वो बार्स जो हैं केज के उसके पीछे हैं, उसके अंदर बंद है. सो ही इज़ फिरोशियसनेस इज़ ऑल्सो बिहाइंड द बार्स. तो जो अब यू कैन से कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो फ्यूरियस होते हैं, बहुत फिरोशियस होते हैं, मतलब कि शिकार कर सकते हैं, मतलब दे आर हार्मफुल, राइट? दे आर हार्मफुल फॉर एनिमल्स, बट वो उनकी हैबिटेट होती है, वो ऐसे ही अडेप्ट करते हैं चीज़ों को, ऐसे ही शिकार करते हैं, तो दे आर फिरोशियस. जैसे कि टाइगर बिहाइंड बार्स में ही इज़ कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स, दैट इज़ वाई उसका जो एटीट्यूड है ऑफ फिरोशियसनेस दैट इज़ ऑल्सो confined behind the cage.
he just stalks in the cage. अब जो बिकॉज ही इज़ फिरोशियस, वो दौड़ेगा, भागेगा, शिकार करेगा, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है बिकॉज ही इज़ कन्फाइंड इन द केज. ही कैन जस्ट स्टॉक अराउंड, means he can just walk around the cage, and that too he can only take small steps because the cage is very small according to him. He never tries to terrorize the visitors because his power is restricted by the cage. अब कभी भी जो विजिटर्स जू में आते हैं उसको देखने के लिए, उनको कभी भी नहीं डराता. बट एट द सेम टाइम अगर वो जंगल में होता और आउटस्कर्ट्स में जो हाउसेस हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उनको टेरराइज़ करता, उनको डराता. बट अब विजिटर्स को क्यों नहीं डरा रहा है वो? बिकॉज उसकी जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है केज तक. उसे पता है कि अगर वो उसे डराएंगे भी तो वो उनसे नहीं डरेगा क्योंकि ही इज़ रिस्ट्रिक्टेड, ही इज़ कन्फाइंड इन द केज. ऑल हिज पावर्स इज़ कन्फाइंड, ही डजंट हैव एनी फ्रीडम. ओके, देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक देम. तो कभी भी वो उन्हें डराने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो डराएगा भी तो उससे कोई नहीं डरेगा क्योंकि वो कभी उसे अटैक नहीं कर सकता उन पर. ओके, लेट्स कम टू द लास्ट पैराग्राफ. He hears the last voice at night. The patrolling cars. Patrolling means the guards who come to vigilate. विजिलेशन के लिए जो आते हैं गार्ड्स, मतलब देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है, पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं गार्ड्स, उनकी बात हो रही है. And stares with his brilliant eyes at the brilliant star. Okay, so the literary device used here is alliteration, use of sound H in the starting of two words. In this line he hears, तो H का sound आ रहा है दोनों में. Then assonance, use of I sound, line number 3rd, and stares with his brilliant eyes, तो I का sound जो है वो prominently आ रहा है इसमें. Okay, these are the these two literary device has been used. So this paragraph means that the poet says that in the night the tiger hears the sound of patrolling cars. जो कार्स लेकर आते हैं पेट्रोल करने के लिए, विजिलेट करने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है, तो उसका साउंड जो होता है वो लास्ट होता है रात में जो वो सुनता है. पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस which are used to guard at night. So, in the night, the tiger hears the sound of these cars. He then stares at the shining stars with his shining eyes. फिर उसके बाद he stares at the stars. Shining stars. ऊपर जो तारे हैं चमक रहे हैं उनको वो stare करता है. Stare means देखना, घूरना. With his shining eyes, and his eyes are also shining. The poet here wants to say that tiger is sad, as he is confined in the cage, so he cannot do anything. Therefore, he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. So, जब पेट्रोलिंग के लिए आते हैं वो जो लास्ट साउंड होता है उसको इग्नोर करने के लिए, वो सारे थॉट्स को इग्नोर करने के लिए टाइगर स्टार्स को देखता है रात में और ट्राई करता है अपने जितने भी ये जो थॉट्स हैं जो टुवर्ड्स देम आ रहे हैं उनको डाइवर्ट हो जाए उनसे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि वो थोड़ा सा खुश हो सकता है कुछ टाइम के लिए. बिकॉज ही इज़ वेरी सैड बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री. हिज फ्रीडम हैज़ बीन स्नैच्ड, ही हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू अ केज. ओके, so he tries to divert all these thoughts to look into the sky and to glare at the shining stars. Okay, so here we come to the end of the explanation of the poem. I want you to go through the poem, go through the explanation, and if you have any doubt you can ask. Thank you.